Hello student, yesterday you had studied that frequency domain specification in which we have we had studied that what is resonance frequency, the frequency at which maximum value of your magnitude will attain. That particular frequency is known as resonant frequency. Okay. For that you had calculated some calculations like this. What is omega r? Wr is equal to wn under root 1 minus 2 rho square. Rho is damping factor, wn is normal frequency. Okay. Similarly you have calculated this. Yesterday you have calculated this. Okay. Then you had also studied what is resonant peak magnitude value at maximum value at wr is known as resonant, is known as peak value. Okay. For that you have calculated this. Okay. Now yes, today we had studied, we had take an example in which we have given mjw is equal to this in this form. Okay. First of all you have to convert this form into जनरलाइज फॉर्म. जनरलाइज फॉर्म कौन सी वाली, जो आप एक बार पहले पढ़ चुके हो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की. ठीक है, इनिशियली में. ठीक है, इस फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लाएंगे. ये मेथड है, ये अब आप निकालेंगे तो हो जाएगा. ये आ गई. एंड आफ्टर दैट यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस वन. ओके. एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो एम पी, and you will find out that rho is equal to 1 by root 2, mp is equal to 1 by r. This is just an example, one numerical. Okay. Now what is bandwidth? Bandwidth, as you know, that value of frequency at which magnitude value कितनी होगी, 1 by root 2, that is 0.707 of maximum value. That particular frequency band मतलब above at which a value maximum magnitude of value इससे ऊपर होगी, that particular band is known as, particular frequency range is known as bandwidth. Okay. अगर मैक्स बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो उतनी ही जल्दी हमारा रिस्पॉन्स आता है, उतना ही कम टाइम लगता है किसी भी चीज़ को. ठीक है ना, यही कहता है मैक्सिमम बैंडविड्थ अगर होगी तो फास्टर रिस्पॉन्स. तो बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू राइज टाइम. राइज टाइम हो गया, अगर आपने इनपुट दिया तो आउटपुट कितने टाइम में वो अपनी पीक वैल्यू अटेन करता है, 10% to 90%. दैट पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज राइज टाइम. और जितनी जल्दी ये पीक वैल्यू अटेन करे उतना हमारे लिए बेटर होता है. तो वो कब होगा, जब हमारे पास बैंडविड्थ जो है मैक्सिमम होगी. ओके. नाउ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है, जनरली आपने लो पास फिल्टर में भी पढ़ा है, जिसके बाद हमारी जो रेंज जहाँ तक जा सके. सिमिलरली आप ये कह सकते हो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, मान लो ये आपका ग्राफ, ये अगर 0.0727 इसके ऊपर वाली बैंडविड्थ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी. Okay, for that you have calculate, you have this equation, you have to remember this equation for numerical point of view. Okay. Now next topic is frequency domains approximation of dead time. As you have earlier you have already studied that what is dead time. So if okay, yesterday, earlier you had studied that what is dead time. Dead time, when in a numerator you have this type of function e raised to a minus ts. Okay. When you put value of s is equal to j omega, put this, and e of j raised to power something is how to write, cos omega t minus j sin omega t लिख दिया. मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 आएगा. ओके. दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ डेड टाइम इज इक्वल टू 1. ओके. सिमिलरली एंगल, how to find out angle? Angle is tan inverse imaginary part divided by real part. Okay. So in this minus omega t, angle of that time is minus omega t. Okay. So our that time function is easily written in this form. We will write this that time function is as a this in radian form. So when we want to convert this radian into degree, you have to do some calculations. For that you will do what, omega t 1 into 80 something. Okay. Then you will get this answer.
So you have to memorize these two equations for numerical point of view. Okay, ये हो गया that time. Now important topic, so you please listen carefully. Stability from frequency response plots. ठीक है, किस तरह हमने स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जब प्लॉट जो आएगा उससे. फॉर दैट सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव 1 plus GSHS is equal to 0. Okay, GSHS is equal to -1. Okay, put S is equal to j omega. सिंपल, ये भी पुट किया आपने तो आपके पास आ गया. दिस -1 J0 जब पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हमेशा मानना है हमने क्रिटिकल पॉइंट. मान लिया. Okay, for stability criteria you have to do some calculations. For that, first point is you have to find out gain crossover frequency. हमेशा याद रखना, इसको ओमेगा GC रखना है. गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी कौन सी हो गई? जब हम मैग्नीट्यूड GSHS का निकालेंगे, उस मैग्नीट्यूड में ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा GC, तो वो हमारा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आएगा. इन अदर टर्म्स, मैग्नीट्यूड ऑफ जे जी ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा GC, वो क्या वैल्यू आएगी? इज इक्वल टू 1 और 0 डेसिबल. ओके, नो व्हाट इज फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी? फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी वो वैल्यू होगी ओमेगा की जब आपके एंगल की वैल्यू -180 डिग्री आएगी. ओके, सिंपल, हमारे पास एंगल की इक्वेशन होगी, उस पर हमने डब्ल्यू की वैल्यू WPC पुट करनी है और हमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका WPC की वैल्यू निकल आएगी. अभी हम थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट. नाउ नेक्स्ट, गेन मार्जिन. बेसिकली इट इज़ अ अलोएबल गेन. कितना गेन हम कोई सिस्टम अलो उसको कर सकते हैं. फॉर दैट, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू PC, मतलब मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है किसकी, किसी भी सिस्टम की, ठीक, उस पर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा PC डालोगे, जो PC यहाँ से निकलेगा, डाल दी, इज इक्वल टू समथिंग, कुछ वैल्यू आएगी उसकी, दैट इज एक्स, लेट अस से एक्स. ओके, देन गेस मार्जिन जो होगा वो होगा इस एक्स का रेसिप्रोकल. व्हाट इज गेन मार्जिन? जब हम ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC की वैल्यू इस मैग्नीट्यूड में डालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा में डालेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा PC की वैल्यू, तो हमारा एक्स कोई वैल्यू कोई भी चीज़ आएगी, उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट रेसिप्रोकल इज गेन मार्जिन. और इन अदर टर्म्स, डेसिबल की टर्म में 20 log 1/x. ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट ओमेगा PC अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. देन सब्स्टिट्यूट दिस ओमेगा PC की वैल्यू जो आएगी, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा PC जितनी वैल्यू आएगी वो हम मैग्नीट्यूड में पुट करेंगे, तो हमारा कुछ आंसर आएगा, उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज गेन मार्जिन. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फेज मार्जिन? फॉर फेज मार्जिन क्या शो करता है? अलोएबल फेज लैग. कितना फेज आप उसका लैग करवा सकते हो, अलोड, मतलब ज़्यादा नहीं, एक्सेस नहीं, कुछ एक लिमिट है. ओके, फॉर दैट हमें क्या करना है, एंगल वाली इक्वेशन लेनी है, उसमें सिर्फ ओमेगा की वैल्यू ओमेगा GC पुट करनी है. व्हाट इज ओमेगा GC? ओमेगा GC इज गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी. GC पुट की तो कुछ उसका फाई आएगा, कुछ फाई आएगा, उस फाई को 180 डिग्री से जब प्लस करेंगे तो आपका 180 + फाई जो होगा दैट इज़ फेज मार्जिन. ओके, दैट इज़ फेज मार्जिन. अब हमने क्या चीज़ निकाली? पहले हमने गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकाली, फिर हमने फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकाली, आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेटेड गेन मार्जिन, देन फेज मार्जिन. ठीक, अब हमने क्या करना है, ये 4 वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मोनोस्टेबल. उसके लिए 3 कंडीशंस है. फॉर स्टेबल सिस्टम दिस गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ विल बी पॉजिटिव. ओके, और जो गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी होगी वो लेस देन फेज क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी. फॉर अनस्टेबल सिस्टम दीज वैल्यूज आर नेगेटिव and omega gain crossover is greater than this. For marginal stable, these both values will be equal and gain crossover, phase crossover frequency is also equal to each other. Okay. Okay. Tomorrow we will study what gain margin and phase margin for second order system. So, till tomorrow, take care.